شاید میں کوئی غلطی کر رہا ہوں۔ اوشان کے دل میں پھانسی اٹھنے لگی۔ شاید میں نے مخالف کی صلاحیت کا کچھ زیادہ اندازہ لگا لیا ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ چلتا رہا۔ نہیں، وہ زیر لب بولا، ہرگز نہیں، یہ بات نہیں، میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ لیکن اسے احساس تھا کہ اب تک رونما ہونے والے واقعات میں کہیں نہ کہیں کوئی حماقت ہو رہی ہے۔ یہ حماقت کیا ہے؟ وہ اس سوال پر غور کرنے لگا۔ اب وہ عمارت کے سامنے تھا اور اس سے قبل کے محافظوں کی نظر اس پر پڑتی وہ کسی بلی کی طرح اچھل کر احاطے میں کود چکا تھا۔ وہ کسی کی نظر میں نہیں آیا۔ اس کی رفتار اتنی ہی تیز تھی۔ بہرام کے آدمیوں کو پہچان لینا زیادہ مشکل بات نہ تھی۔ ٹائیگر سے اس نے اس بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سامنے تھا۔ وہ لوگ برساتی کوٹ پہنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کیمرے تھے اور ان کے سینوں پر پریس لکھا ہوا تھا۔ کیمروں کا رخ ہجوم کی طرف تھا، مگر اوشان کو ابھی تک کسی بھی کیمرے کی کلک سنائی نہیں دی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ برساتی کوٹ پہنے ہوئے کسی بھی شخص کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ حملہ کہاں سے ہوگا؟ یہ سوال کسی بجلی کی طرح ذہن میں کوندا۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا محور دھوکہ تھا، اور اس محور کے فلسفے کی بنیاد پر اسے یقین تھا کہ حملہ سامنے سے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حملہ ور یقیناً کسی بہروپ میں ہوں گے۔ کس روپ میں ہوں گے؟ اوشان بار بار اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا۔ اخباری نمائندوں کے بیس میں؟ نہیں، اخباری نمائندوں پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا۔ ہنگامی حالات میں تو پولیس والے براہ راست صحافیوں کو ہی مورد الزام ٹھہراتے اور انہیں برا بلا کہتے ہیں، انہیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ تو کیا قاتل پولیس کی وردی میں ہوں گے؟ نہیں، یہاں اتنے پولیس والے ہیں کہ کسی بھی بہروپیوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تب پھر کسی پادری کے بیس میں قاتل آئیں گے؟ نہیں۔ وہ سر جھٹکنے لگا۔ اس عمارت میں پادریوں کے داخلے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ ان کی موجودگی پولیس والوں کو مزید چوکنا کر سکتی ہے۔ وہ ایک بار پھر محافظوں کی قطاروں کو گورنے لگا۔ آخر ایسا کون ہے جو اس انسانی دیوار کو بغیر کسی پوچھ گچھ کے عبور کر سکے؟ تبھی اس کے ذہن میں جماکا سا ہوا۔ وہ مرکزی دروازے کے سامنے پلازا کی طرف بڑھنے لگا، جہاں فوجی جوان موجود تھے اور آزادی سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ قاتل فوجی دستے کے بیس میں ہی آ سکتے ہیں۔ فوجیوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، اور جب پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو اس وقت تک بہت تاخیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اوشان نے اپنے آپ کو یقین دلانے والے انداز میں دل ہی دل میں سوال کیا۔ اس کو اس بات پر یقین کرنا تھا، لیکن یہ بات ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر حملہ اس انداز میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ منصوبہ بندی ناقص تھی، اور شاید یہی نقص محافظوں کے علم میں نہیں تھا۔ میوزیم کی سامنے والی سنگی سیڑھیوں پر ایک رسی بندھی ہوئی تھی اور اس کے قریب ہی بورڈ لگا ہوا تھا، میوزیم بند ہے۔ ٹائیگر نے زینے کی بجائے وہ راستہ اختیار کیا جو ایک پگڈنڈی کی شکل میں تھا اور جو پہلی منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ در حقیقت پہلی منزل گراؤنڈ فلور سے کچھ ہی اونچی تھی، کیونکہ گراؤنڈ فلور دراصل تہہ خانہ تھا۔ اسے وہاں بھی دروازہ بند ملا، تاہم قفل کو محض انگلیوں کی جنبش سے توڑ دینا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور دور ہی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس مخمصے سے دوچار تھا کہ اس صورتحال کی اطلاع پولیس کو کرے یا نہ کرے، لیکن اسے $50 کی باری ٹپ یاد آ گئی۔ لہٰذا ڈرائیور نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ نوجوان غیر قانونی طور سے میوزیم میں داخل ہو رہا ہے تو یہ اس کا درد سر نہیں۔ اگرچہ باہر روشنی اور گرمی تھی، لیکن اندر تاریکی اور خنکی نے ٹائیگر کا استقبال کیا۔ ٹائیگر نے آنکھوں اور تاریکی کو ہم آہنگ کرنے میں صرف ایک پل ہی لیا، اور پھر پہلی منزل کے مرکزی ریسیپشن ہال کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی یادداشت اچانک ہی تازہ ہو گئی تھی، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی سال کی بجائے محض چند روز قبل یہاں آیا تھا۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ راہداری میں داخل ہوا اور دائیں طرف گھوم گیا۔ یہاں پہلی منزل کے کارنر میں ایک کمرے کے اندر داڑھی والا ایک نوجوان بیٹھا ہوا نظر آیا، جس نے کان سے ریسیور لگا رکھا تھا۔ وہ یہاں آ چکا ہے، نوجوان نے سرگوشی میں کہا۔ گڈ۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ٹاپ فلور تک اس کا تعاقب کرو اور پھر اسے ختم کر دو۔ نوجوان سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ٹاپ فلور تک نہ گیا؟ ضرور جائے گا، نوجوان سے کہا گیا۔ اسے ختم کرنے کے فوراً بعد مجھے فون کر دینا۔ ٹائیگر مسلسل زینہ چڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اوشان کی ہدایت کے مطابق بالائی منزل سے ہی شکار کی تلاش کا کام شروع کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح شکار کے فرار کی راہ مسدود ہو جاتی، لیکن اس نے نہ جانے کیوں یہ ہدایت نظر انداز کی تھی۔ تاہم اب وہ تیزی سے ٹاپ فلور کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس منزل کے آخری کمرے میں وہ حال تھا جہاں قدیم اور تاریخی جانوروں کے خنوط شدہ جسم محفوظ تھے۔ وہ سیدھا اسی حال میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں وہ جانور موجود تھے جن کا ذکر اب صرف تاریخ میں محفوظ تھا، اور اس وقت بالکل زندہ و سلامت لگ رہے تھے۔ بس ان کی خاموشی کے باعث ہی یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ ایک جانور کے قریب رکا اور سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس جانور کا قد 10 فٹ کے قریب تھا اور اس کی لمبی سی تھوتنی نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی ٹائیگر کا بغور جائزہ لے رہا ہو۔
उसी लम्हे टाइगर ने अकब में हल्की सी चाप सुनी और फौरन पलट कर देखा। वही दाढ़ी वाला नौजवान कराटे की स्याह यूनिफॉर्म में उसके सामने खड़ा था। अरे तुमने कराटे का फन कहाँ से सीखा? टाइगर ने खुशगवार लहजे में उससे पूछा, लेकिन स्याहपोश गालिबन वक्त जाया करने के मूड में न था। उसकी हल्क सी मखसूस आवाज निकली और इसके साथ ही वो फजा में बुलंद होकर टाइगर की तरफ लपका। उसकी दोनों टांगे इस अंदाज में मुड़ी हुई थी कि वो पलक झपकते में उन्हें सीधा करके मोहलक किक लगा सकता था। उसका दायां हाथ मुक्के के अंदाज में सर से बुलंद था और ये हाथ आरी ज़रब लगाने के लिए तैयार था। उसकी जकंद ऊंची और लंबी थी और यही उसकी मोहलक गलती थी। इससे कबल के वो किक लगाता या हाथ से ज़रब मारता, टाइगर ने महज पहलू बदला और फिर उसका टेटवा टाइगर के फैले हुए हाथ में आ गया। फिर जो ही नौजवान का सर झुका, टाइगर ने कलाई को हल्का सा दबा दिया। टाइगर की उंगलियों ने हलक की हड्डियां, पट्टे और उजलात इस तरह पिचका दिए जैसे टेटवा नहीं टमाटर हो। नौजवान दब से संगमरमर के फर्श पर गिरा और साकत हो गया। उसकी आवाज तक नहीं निकली थी। दूसरी मंजिल पर जब 300 सेकंड गुजरने के बावजूद फोन की घंटी नहीं बजी तो जर्दरो शख्स धीरे से मुस्कुराया और जैनी की तरफ देखने लगा। क्यों, क्या हुआ? जैनी ने पूछा। उसने हमारी पहली दिफाई लाइन तोड़ डाली है, जर्दरो शख्स ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? जैनी ने पूछा। किराए का माहिर मारा गया। उसके लहजे में इंतहाई एतमाद और यकीन था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम इतने पुरसुकून क्यों नजर आ रहे हो? जैनी पहलू बदल कर रह गई। तुम एक सच्ची इनकलाबी हीरोइन की तरह बोल रही हो। वो हंस पड़ा। हमने तैयारे अगवा किए, यरगमालियों को गोली मारी, ये सब कुछ कितनी आसानी से हो गया। हमने आज कई सिफारतकारों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन हमें इस नौजवान की फिक्र है जिसकी कराटे टेक्निक इंतहाई घटिया साबित हुई। फिर भी वो हमारा आदमी था, जैनी ने एहतजाज करने वाले अंदाज में कहा, जबकि उसे कत्ल करने वाला इस्तेमार का कासा लेस और इनकलाब का दुश्मन है। नहीं मेरी प्यारी, जरदरो ने हंसकर जवाब दिया। सब एक जैसे हैं, उन पर कोई भी लेबल लगा दो, वो सब आदमी हैं। सिर्फ सोच का फिक्र एजेंट या कुछ और बना देता है। मैं समझता हूँ कि दाढ़ी वाले की मौत कामयाबी और करीब ले आई है और इस मौत का जिम्मेदार साम्राज्य है। जैनी ने बुरा समूह बनाकर कहा, हमारे नजरियात के लिए खतरा है। इस दुनिया में नजरियात नामी कोई चीज नहीं। वो खड़ा हो गया। सिर्फ ताकत ही सब कुछ है और ताकत का सरचश्मा जिंदगी है मेरी इनकलाबी हीरोइन। ये कहकर वो डेस्क के पीछे जा खड़ा हुआ। उसने कान दीवार से लगा दिए, लेकिन उसकी नजरें जैनी पर जमी हुई थी। उसकी नजरों में न जाने ऐसी क्या बात थी कि जैनी अपनी कुर्सी में सिमट कर रह गई। वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था और जैनी को ये इल्म नहीं था कि वो अपनी मौत या जिंदगी के कदमों की चाप सुनने की कोशिशें कर रहा है। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। वो बड़े इनेमाक से दीवार से कान लगाए कुछ सुनता रहा, लेकिन ऐसा करते ही भी उसकी आंखें जैनी पर जमी हुई थी। उसके अचानक खामोश हो जाने पर जैनी के चेहरे पर भी हैरत के तासरात फैल गए, लेकिन वो मुंह से कुछ न बोली और खामोशी से जरदरो की आंखों में झांकती रही। मान जरदरो के होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट दौड़ गई, जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच गया हो। जैनी को उसके हर अंदाज में पूरी सरारियत महसूस हो रही थी। जाने उसकी मुस्कुराहट में कौन सा तासुर था कि जैनी को अपने जिस्म में सर्दी की लहर सी दौड़ती महसूस हो रही थी। सुनो जैनी, मैं तुम्हें अपने एक राज की बात बताऊं। उसका लहजा इंतहाई पुरस्रार था। अब तक हमारे हाथों जितनी तबाही मची है, जितने लोग कत्ल हुए हैं, इस तबाही और इन वारदातों का मेरे जहन में सिर्फ एक मकसद है। मैं किसी इनकलाबी नजरिए को नहीं मानता। मैंने और तुमने जो कुछ किया, इसका वाहिद मकसद 2 अफराद की बर्बादी है। 2 अफराद की बर्बादी। जैनी चौंक पड़ी। क्या तुम्हारी मुराद शहजाद और उसके बूढ़े मशरकी साथी से? हाँ, मैं शहजाद का ही जिक्र कर रहा हूँ, जो आजकल मास्टर ऑफ सनाजू बनने के ख्वाब देख रहा है, और ओशान का भी, उस बूढ़े का जो आजकल मास्टर है, जिसका वजूद मेरे और मेरे मकसद के दरमियान किसी आहनी दीवार की मानिंद हायल है। तुम्हारी बातें गैर इनकलाबी हैं। जैनी मुंह बनाकर बोली। उसे मान ही हर चीज से नफरत महसूस होने लगी थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि तैयारों का अगवा, लोगों का कत्ल और ऐसी ही सारी बातें और हरकत काबिल नफरत हैं। मुमकिन है, जरदरो मुस्कुराने लगा, लेकिन फतहमंद शख्स अपने अमाल पर कोई भी लेबल लगा सकता है, जबकि शिकस्त खुर्दा को ये हक हासिल नहीं होता। ये कहते हुए उसकी आंखें अजीब अंदाज में चमकने लगी थी। बस बहुत बातें होगी। वो एक तवील सांस लेकर ख्वाबनाक लहजे में बोला, अब वो आने ही वाला होगा। आओ अपने मंसूबे के अगले हिस्से पर अमल करेंगे। मैं समझी नहीं। वो हमारी तलाश में ऊपर आएगा और मायूस होकर वो एक बार फिर नीचे का रुख करेगा। देखना यह है कि वो दूसरी दिफाई लाइन भी तोड़ सकता है या नहीं। हम नीचे चलेंगे। टाइगर ने टॉप फ्लोर पर किसी को ना पाकर बुरा समूह बनाया।
मगर उसे किसी किस्म की झंझलाहट न हुई। वो वापस सीढ़ियां उतरने लगा। चौथी मंजिल की तरह तीसरी मंजिल पर भी अब कोई न था। वो सर हिलाता हुआ जीने पर चलता रहा और फिर आखिरी जीने के हिस्से पर उसे रुक जाना पड़ा। नीचे एक कदावर स्याह पोश खड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराकर टाइगर की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। टाइगर के होठों पर उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। नहीं मेरे दोस्त, उसने नफी में सर हिलाते हुए स्याह पोश को मुखातिब किया। वो तुम नहीं। ये कहते हुए वो गैर महसूस अंदाज में पीछे हटने लगा। जो ही टाइगर थर्ड फ्लोर के दरमियानी जीने पर पहुंचा, उसे अपने दाईं जानिब एक और शख्स की मौजूदगी का एहसास हुआ। हजरात, टाइगर ने मुस्कुराकर बारी बारी दोनों की तरफ देखा, जो किसी रोबोट की तरह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मैं इनकलाब का साथ देने के लिए आया हूँ। जहन्नुम में जाओ, दूसरे स्याहपोश ने घुराकर जवाब दिया। गुड, टाइगर मुस्कुराता रहा। क्या तुम दोनों दारोगाए जहन्नुम हो? लेकिन वो उसे खामोशी से घूरते रहे थे। टाइगर के होठों पर अब भी मुस्कुराहट खेल रही थी, लेकिन इस मुस्कुराहट में तैश दिलाने वाला तासुर गालिब था। उसके उजलात धीरे धीरे सख्त हो रहे थे। उसका एक एक उज़्व पेश आने वाले हालात से निपटने के लिए तैयार था, लेकिन दोनों स्याहपोशों में से किसी ने भी हमले में पहल करने की कोशिश नहीं की थी। वो एक एक कदम इंतहाई मोहतात अंदाज में उठा रहे थे, गालिबन इस हकीकत से आगाह थे कि उनके सामने कोई मामूली हस्ती नहीं बल्कि वक्त का सबसे बड़ा फाइटर खड़ा है। इमारत में हर समत गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। टाइगर को इन दोनों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी और इन धड़कनों की रफ्तार मामूल से कुछ ज्यादा ही तेज थी। टाइगर जानता था कि उनकी ये कैफियत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि वो जल्द ही तैश में आ जाएंगे। टाइगर का अंदाजा गलत साबित न हुआ। अगले ही लम्हे वो तेजी से आगे बढ़े थे। दोनों ने बैक वक्त हाथ उठाए और टाइगर ने चार हाथों को गुस्से की सूरत में तेजी से अपनी जानिब बढ़ते देखा। उसने अपनी जगह से कोई हरकत ना की और बड़े पुरसुकून अंदाज में उनकी हरकत का जायजा लेता रहा। फिर इस कबल के उनके आहनी हथौड़ों की मानिंद गुस्सों का सफर उसके चेहरे पर आकर खत्म होता। टाइगर ऐन वक्त पर उनके सामने से हट गया। अब उन गोसों का हदफ टाइगर का चेहरा नहीं बल्कि कंक्रीट की मजबूत दीवार थी। लेकिन उन दोनों ने जो हरकत की, उसे देखकर टाइगर चौंके बगैर न रह सका। उन्होंने इंतहाई फुर्ती का मुजाहिरा किया था। जो ही टाइगर उनकी इज्जत से निकला, उनके हाथ मेकानिकी अंदाज में वापस हो गए थे, वरना दूसरी सूरत में वो आइंदा किसी को भी घूंसा मारने के काबिल न रहते। वो तेजी से घूमे और टाइगर के दाएं बाएं हो गए। फिर इससे कबल के वो टाइगर पर हमला कर दे। टाइगर की एक टांग और एक हाथ ने तेजी से हरकत की और एक स्याहपोश अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख कर लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसके बदन पर तशन जैसी कैफियत थी और चेहरे पर जमे हुए दोनों हाथों की पोरों से खून लकीरों की सूरत में बहकर उसके दस्तानों को सुर्ख कर रहा था, जबकि दोनों के हाथ अपनी पसलियों पर जमे हुए थे। उनके चेहरे पर हैरत और कर्ब का एक अजीब सा इम्तिजाज फैला हुआ था। टाइगर की लगाई हुई किक ने उसकी पसलियों में एक कयामत सी मचा दी थी। टाइगर ने ज्यादा देर वहां रुकना मुनासिब न समझा और तेजी से पलट कर जीने की तरफ बढ़ गया। अभी वो जीने के करीब ही पहुंचा था कि उसके कानों में किसी के गिरने का धमाका सुनाई दिया। टाइगर ने पलट कर न देखा, जैसे उसे यकीन था कि उसके शिकार ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकेंगे। टाइगर बेसाख्ता तौर पर मुस्कुराने लगा। ये मुस्कुराहट जैनी को देखकर नहीं बल्कि जैनी के साथी पर नजर पड़ने के बाद उभरी थी। उसका अंदाजा 100% दुरुस्त निकला था। उसके सामने नौगान खड़ा था, ओशान का नाखलफ भतीजा और दुनिया में उसका सबसे बड़ा खतरनाक हरीफ। टाइगर की आंखों में आंखें डालते ही नौगान के हाथ तालियां बजाना भूल गए। मुझे इल्म था कि तुम ही से मुलाकात होगी नौगान। टाइगर के लहजे में फतामंदी कूट कूट कर भरी हुई थी। क्या ओशान ने मेरा जिक्र किया था? नौगान ने चुभते हुए लहजे में टाइगर से पूछा। नहीं, टाइगर बदस्तूर मुस्कुराता रहा। ओशान का हर उसूल दुनिया से अलग है। वो तुम्हारे बारे में भी उसूली आदमी है। उसका कहना है कि नौगान का नाम सिर्फ और सिर्फ तदफीन की रसूम में लिया जाए। गालिबन सनाजू में ये सजा इंतहाई बदकुमाश आदमी को दी जाती है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बेचारा बूढ़ा ओशान, नौगान ने सर हिलाकर कहा। कुछ देर कबल तक मेरे बाप का भाई यकीनन बहुत जबरदस्त शख्स होगा, लेकिन अब तो खत्म हो चुका है। उसके लहजे में मसनूई तासुर था, जैसे वो ओशान का मजाक उड़ा रहा हो। नहीं, टाइगर ने फौरन जवाब दिया। सनाजू के मास्टर को खत्म समझने वालों से दुनिया के बहुत से कब्रिस्तान भरे हुए हैं नौगान। मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन उन मुर्दों में किसी का नाम नौगान यकीनन नहीं होगा और न ही उनमें से किसी का ताल्लुक एवाने सनाजू से होगा। उनमें से कोई भी एवाने सनाजू के विरसे का गद्दार भी नहीं होगा नौगान। टाइगर ने पुरसुकून लहजे में जुमला पूरा कर दिया। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उन गरीबों को कत्ल गारत गरी के लिए इस्तेमाल करता हो। टाइगर का इशारा जैनी की तरफ था। तुमने दहशत गर्दी की राह का इंतखाब क्यों किया? जैनी उन दोनों को बार बार इस तरह देख रही थी जैसे कोई टेनिस मैच देख रही हो।
नोगान ने कहका लगाया तो उसकी आंखें नोगान के चेहरे पर जम गईं। नोगान संगमरमर की रेलिंग से टेक लगाए खड़ा था और उसके दोनों हाथ सीने पर बंधे हुए थे। कहका लगाते हुए नोगान ने सर को पीछे की तरफ झुकाया तो टाइगर को उसके अकब में दो मोटे मोटे तार नजर आने लगे जो कबलस तारीख की एक 90 फुट बुलंद मछली के संभाले हुए थे। उस मछली के साय की वजह से यहाँ कदरे तारीकी फैली हुई थी जिसने माहौल को अजीब सी पुरस्कारियत दे दी थी। तुम अब भी कुछ नहीं जानते मेरे चचा के शागिर्द, वो इस्तेहज़ाइया लहजे में बोला। मेरे इन तमाम इक़दामात का ताल्लुक दहशत गर्दी से किसी तरह भी नहीं था। क्या ओशान ने तुम्हें कुत्ते की दो किस्में नहीं बताई थी? एक कुत्ता सिर्फ भौंकता है, दूसरा काट खाता है। तब फिर? टाइगर ने धीरे से कहा। तब फिर दहशत गर्दी दरअसल ऐसा कुत्ता थी जो सिर्फ भौंकता है, जबकि काट खाने वाले कुत्ते का असल हदफ तुम और तुम्हारा बूढ़ा उस्ताद है। भौंकने वाले कुत्ते का इस्तेमाल इसीलिए किया गया था कि तुम्हारी तवज्जो काट खाने वाले कुत्ते से हट जाए। तुम्हें वो हाईजैकर्स याद नहीं जिन्होंने लॉस एंजलिस जाने पर इसरार किया था? उनका ये इसरार मेरी हिदायत के मुताबिक था, क्योंकि मुझे यकीन था कि हुकूमत तुम्ही को तलब करेगी। हवाई अड्डे फिर कर्नलों पर हमले का मकसद तुम्हें करीब से करीब तर लाता रहा। मैं तुम्हें टारगेट रिंग में लाने की हिकमत अमली पर अमल कर रहा था। ठीक है, टाइगर सर हिलाकर रह गया। लेकिन किसी को टारगेट रिंग में ले आना अलग बात है और उसे टारगेट बनाना अलग। यही तो पूरे खेल का हुस्न है शहजाद, नोगान ने कहका लगाते हुए जवाब दिया। मेरी तरफ से ज़रब भी तुम ही लगाओगे। मुझे इल्म है कि तुमने सिफारतकारों की जान बचाने के लिए ओशान को अक़वाम मुत्तहिदा भेज दिया है। हालांकि उन सिफारतकारों की जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। वहाँ ओशान वही करेगा जिसकी मास्टर को तरबियत दी जाती है। वो दुश्मनों के करीब पहुँच जाएगा और फिर उसे बहुत देर बाद इल्म होगा कि असल हदफ सिफारतकार नहीं बल्कि वो खुद है। नोगान ने तवील सांस ली और घड़ी की तरफ देखे बगैर बोला, इस वक्त 10:42 हुए हैं। सारा मंजर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं जनी। उसने मान ही जानी को इशारा किया जिसने एक तरफ हटकर बैटरी से चलने वाला टेलीविजन ऑन कर दिया जो बालकोनी के साथ साथ गुजरने वाली रेलिंग के सहारे रखा हुआ था। टेलीविजन ऑन होते ही आवाज फौरन आ गई। लोग तालियां बजा रहे थे, चीख रहे थे। फिर एक सेकंड बाद तस्वीर स्क्रीन पर लरजने लगी। तस्वीर वाज़ेह होने में महज एक पल लगा और स्क्रीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने लोगों का वो हुजूम नजर आने लगा जिसको मुहाफ़िज़ों की कतारें पेशकदमी से रोके हुई थी। मान स्क्रीन पर बहराम नजर आया। वो मुहाफ़िज़ों की कतार के पीछे इधर उधर घूम रहा था। टाइगर ने बगौर देखा। ओशान स्क्रीन पर कहीं भी नजर न आ रहा था। टेलीविजन सेट से अनाउंसर की आवाज बुलंद हुई, तमाम बड़े मुमालिक के सिफारतकार अब अंदर पहुंच चुके हैं और कॉन्फ्रेंस का आगाज जल्द हो जाना चाहिए, मगर हुजूम का मूड मुसलसल खराब हो रहा है और हमारी इत्तला के मुताबिक पुलिस को कुमक भी भेजी जा रही है। हम अब आपको कॉन्फ्रेंस रूम लिए चलते हैं। स्क्रीन पर एक लम्हे के लिए तारीकी छा गई और फिर कॉन्फ्रेंस रूम के कैमरे ने काम शुरू कर दिया। हाल अभी पूरा नहीं भरा था, ताहम गैलरी में बहुत से लोग मौजूद थे। चंद सिफारतकार भी अपनी अपनी मखसूस नशिस्तों पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। गालिबन ये दूसरे दर्जे के नुमाइंदे थे और उनके कायदीन अभी तक कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं आए थे, जबकि दफ्तरी अमला खामोशी से मुख्तलिफ मेजों पर फाइलें और कागजात रखने में मसरूफ था। कैमरे का रुख गैलरी की तरफ हुआ। वहाँ मौजूद लोग सरगोशियों में महवे गुफ्तगू नजर आ रहे थे और अब अनाउंसर ने फिर कहा, आप असेंबली चैम्बर में देख रहे हैं जहां इंसदादी दहशत गर्दी की आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज होने वाला है। गालिबन 15 मिनट के बाद कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। अगरचे बाहर मुजाहिरीन बहुत तलखी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के अंदर सिफारतकारों की मुत्तफिका राय यह है कि कॉन्फ्रेंस आलमी इंसानियत का बरम रखने के लिए एक अहम और मौसर कदम साबित होगी। लिहाजा अनाउंसर की आवाज अचानक ही दब गई, क्योंकि उस लम्हे दो रोदार आवाजें सुनाई दी थी। फिर ये आवाजें बाकी आवाजों पर भी गालिब आ गई। शायद गोलियां चली थी। ख़वातीन और हजरात, अनाउंसर ने चिल्लाकर कहा, अगरचे हमें अंदाजा नहीं कि ये आवाजें कैसी थी और हम गैर जरूरी खदशात का इजहार भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा। ये गोलियां चलने की आवाजें थी। मैं सूरत हाल मालूम करने की कोशिश करता हूँ और इस दौरान में हम आपको बाहर लिए चलते हैं। नोगान का जोरदार कहकहा गूंज उठा। गुड बाय डियर अंकल ओशान, उसने कहका लगाते हुए जैनी को इशारा किया जिसने टीवी सेट ऑफ कर दिया। नोगान टाइगर को बगौर देख रहा था। तुम सराजू के नए हुक्मरान की तरफ देख रहे हो शहजाद? नोगान के लहजे में बड़ी सफाकी थी, लेकिन टाइगर ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। वो तो नोगान को घूरता रहा। उसके सर में दमक होने लगी थी। क्या तुम अब भी शिकस्त तस्लीम नहीं करोगे? नोगान पैर पटकते हुए बोला, मैंने सारी मनसूबाबंदी इसी लम्हे के लिए की थी। मैंने दहशत गर्दी के नए तरीके सिर्फ इस वजह से इख्तियार किए थे कि तुम दोनों को दहशत गर्दी खत्म करने के लिए मैदान में लाया जाए। मुझे यकीन था कि तैयारे में मशीन गन का सुनकर तुम मैदान में जरूर आओगे, क्योंकि फिर ये मामला FBI के बस का नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें बिल से निकाल लिया।
کہو کیسی رہی؟ جانتے ہو کہ یہ طیارے میں مشین گن کس طرح پہنچ سکی؟ اس کا اندازہ کوئی بھی لگا سکتا ہے نوگان، ٹائیگر بہت دیر بعد بولا، مگر اس وقت بھی اس کا ذہن منتشر تھا اور وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اوشان کس حال میں ہوگا۔ ہاں، لیکن کسی نے بھی اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ نوگان ہنس پڑا۔ تمہارے آلات چھپی ہوئی دھات یا ہتھیاروں کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہم نے نفسیاتی کھیل کھیلا۔ مشین گن کو سب کے سامنے سے نکال کر لے گئے اور لوگ چھپے ہوئے ہتھیاروں کی تلاش کرتے رہے۔ اچھا، ٹائیگر نے صرف ایک لمحے تک سوچا، کیا تم نے مشین گن طیارے میں لے جانے کے لیے معذوروں والی کرسی استعمال کی تھی؟ ہاں، نوگان نے سر ہلا کر جواب دیا۔ ویل چیئر کے ساتھ مشین گن کے مختلف حصے الگ کر کے باندھ دیے گئے تھے۔ ویل چیئر پر ایک آدمی کو بٹھا دیا گیا اور پھر ویل چیئر آلات کے سامنے سے گزری۔ مشین نے فوراً بتا دیا کہ دھات گزر رہی ہے، لیکن ویل چیئر بھی تو دھات کی تھی، لہٰذا کسی نے مشین کی چغل خوری پر کوئی توجہ نہ دی اور ویل چیئر بڑی آسانی سے طیارے میں پہنچ گئی۔ یہ ہماری ذہانت کی انتہا نہیں تو اور کیا تھی شہزاد؟ تم نے ایک بازاری ترکیب استعمال کی تھی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم سے اچھے شعبدے تو بازیگر دکھا دیتے ہیں، تم میری مہارت اور میرے فن کی تردید کر رہے ہو، نوگان نے سخت لہجے میں کہا۔ ذرا ہمارے تربیتی پروگرام پر تو غور کرو، ہم چند گھنٹوں میں خام کو پختہ بنا لیتے ہیں۔ کیا اوشان نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اگر استاد اوشان نے مجھے پہاڑوں پر حملے کے بارے میں بتایا تھا؟ ٹائیگر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں، ان کسانوں کو بھی محض چند گھنٹے کی تربیت دی گئی تھی، نوگان نے سر ہلا کر جواب دیا۔ لیکن اس وقت یہ خیال نہیں رکھا گیا تھا کہ محل میں داخل ہوتے ہی وہ مرعوب ہو جائیں گے اور اسی باعث وہ سب کے سب مارے گئے۔ میں نے تم لوگوں کو بار بار انتباہ کیا، موٹے اور دبلے کے ذریعے پیغام بھیجے، پھر مردہ جانوروں والا پیغام دیا، لیکن اوشان کو یہ بات دیر میں معلوم ہوئی کہ مد مقابل کون ہے۔ میں صرف یہی چاہتا تھا کہ اوشان کو مد مقابل کا علم ہو جائے۔ وہ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی فکر نہ کرے بلکہ تمہارے بارے میں پریشان ہوتا رہے۔ میں اس کے ذہن کو منتشر کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی قوت کی ساری کلید ذہنی ارتکاز ہی میں ہے۔ پھر تم نے جینی سے مجھے فون کرایا۔ ہاں، نوگان نے ایک اور کہکا لگایا۔ یہ حکمت عملی بہت شاندار تھی۔ میں جانتا تھا کہ اوشان تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گا کیونکہ اس طرح تم اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے۔ اس کے پیش نظر میں نے خود تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میری کوشش کامیاب ہو گئی اور تم اوشان کو تنہا مرنے کے لیے چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ اب تمہیں بہر صورت فیصلہ کرنا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میرے ساتھ کام کرو، نوگان نے پیشکش کی۔ تمہیں ماسٹر کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے اور اب تمہیں نئے ماسٹر کے ساتھ کام کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دونوں مل کر بہت جلد دنیا بھر میں اپنا اقتدار قائم کر سکتے ہیں شہزاد۔ سوال یہ ہے کہ تمہیں نیا ماسٹر کس نے منتخب کیا نوگان؟ ٹائیگر کا لہجہ عجیب سا تھا۔ اس سوال پر نوگان ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا مگر پھر فوراً سنبھل کر مسکرانے لگا۔ اس کی فکر مت کرو، انتخاب کے لیے کچھ اور نہیں، کیونکہ ماسٹر کا منصب حاصل کرنے کا دعوے دار کوئی اور نہیں ہے۔ تم مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، ٹائیگر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر بالفرض محال اوشان مر گیا ہے تو پھر میں اس کی جانشینی کا دعوے دار ہوں گا، میں ماسٹر بنوں گا۔